Good afternoon, all. I am Sonam, lecturer in IMT College of Polytechnic. Today, our topic is computer memory. Do you know what is computer memory? As human beings have brain for learning, to learn, to save, to store. Same procedure for the computer. It also have a memory. It also has a memory that can store the data that we can use according to our requirement. It can save the data temporary and permanent, depend on the type of the memory. So first of all, we should know what is the computer memory. So firstly, we should know what we have to learn. Firstly, we will know introduction, then types of the memory. First is the primary memory and the second is the secondary memory. What is computer memory? The question is, what is computer memory? As we can see in the slide, in computing, memory refers to the physical devices used to store the programs or data on a temporary or the permanent basis for use in a computer or other digital electronic device. As I told you that memory used to store the data. It can be of any size, depend on the type of the data. Types of the memory, we are having mainly two types of the memory, primary memory and the secondary memory. Then again, primary memory is of the two types, RAM and ROM. RAM stands for the random access memory and ROM stands for the read only memory. Second is the secondary memory. It is also known as the permanent memory. it its types are CD, DVD, floppy disk, hard disk. The primary memory, it is also known as the internal memory or the main memory. It is directly accessible by the CPU. There is no other device between these two devices. Only CPU will connect to the main memory. It is a volatile memory. Volatile means if we switch off the computer, then memory will be cleaned. No data will be saved in that type of the memory. It holds only those data and instructions on which computer is currently working. Primary memory or main memory. It is of two types, RAM and ROM. RAM means random access memory, or we can say it read write memory. Second is the ROM, read only memory. RAM, random access memory. RAM is like a chip, as we can see in the image that RAM is this type. RAM memory chip is an integrated circuit made up of the millions of the transistor and capacitor. It is a volatile memory. As RAM memory size will increase, the computer speed also increase. RAM की स्पीड या RAM का साइज जितना ज्यादा होगा, हमारे कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वो पर सेकेंड उनको रन करेगा, हमें रिजल्ट देगा. इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी. जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, ये हमारा मेमोरी क्लीन हो जाएगा. द नेक्स्ट स्लाइड इज types of the RAM. We have two types of RAM, static RAM and dynamic RAM. Static RAM means semiconductor memory. आप देख सकते हो इमेज में, जो हमारी स्टैटिक रैम होती है वो इस टाइप की होती है. जो हमारा रैम था वो ये है. स्टैटिक रैम इस टाइप का होता है, इमेज में देखिए. और जो रोम होता है, सॉरी, डायनामिक रैम होता है, वो इस टाइप का होता है जो आप इमेज में देख सकते हो. तो जो फर्स्ट टाइप की रैम की है वो है हमारा स्टैटिक रैम, semiconductor memory. It uses flip flops to store each bit of the memory. जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो भी एक टाइप की मेमोरी होती है, जो एक टाइम पे एक ही आपका इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगी. uses flip flops to store each bit of memory, so does not need to be periodically refreshed. हमें इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन एक ही बार पे वो रन करेगा, फिर उसको वो हटा देगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तब सेव होगा. फास्ट एंड कंज्यूम्स लो पावर. बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कम पावर को यूज करता है. एक्सपेंसिव एंड हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो नॉट यूज्ड फॉर द हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस. इसको हम हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस में यूज नहीं करेंगे. सेकंड है हमारा डायनामिक रैम. डायनामिक रैम क्या करेगा? स्टोर्स ईच बिट ऑफ द मेमोरी इन द कैपेसिटर इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट. इसको हम सर्किट्स में यूज करेंगे. ये रियल कैपेसिटर्स लीक चार्ज, सो कैपेसिटर नीड टू बी रिफ्रेश्ड
periodically, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो स्टैटिक रैम था उसमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, तो उस कारण से हमें उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। बट इसके अंदर कैपेसिटर्स यूज होते हैं, तो इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर पर बिट यूज किया जाएगा, और इट इज अ वेरी हाई डेंसिटी। नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी। न्यू कंटेंट्स कैन नॉट बी एडिड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली मीन्स ये सिर्फ रीड करेगा, राइटिंग का काम इसका नहीं है। राइटिंग का काम जाएगा रैम के पास। इट इज यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रूटीन टाइप, परमानेंट इन नेचर एंड यूज टू कंट्रोल और सुपरवाइज द हार्डवेयर। ये नॉन वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द रोम। रोम क्या आएगा हमारा? पी रोम, इप्रोम, ईईप्रोम। प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, electrically programmable read only memory, and electrically erasable programmable read only the memory. The first is a programmable read only memory, programmed to record the information using a facility PROM programmer. Once the information is recorded, it cannot be changed. इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, एक बार जो स्टोर हो गया वो हो गया। Second is EEPROM, erasable programmable read only memory. Information can be and the chip can be reprogrammed to record different information using PROM programmer. Information is erased using UV radiation. जिसके इसमें हम जैसे नाम से पता लग रहा है इरेजेबल होगा। इरेज किसके थ्रू होगा? वो यूवी रेडिएशन के थ्रू होगा। मीन्स हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि पहले का डाटा इरेज हो जाएगा, जैसे इरेज होगा तो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक होते ही नया डाटा उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो पीछे वाला स्लाइड हमने देखा उसमें पता लग रहा था यूवी रेडिएशन हम यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करेंगे इरेज करने के लिए। प्रोवाइड इजी मीन्स टू स्टोर टेम्पररी और परमानेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द रोम मेमोरी। EEPROM इज जस्ट लाइक अ फ्लैश मेमोरी। जैसे हमारे पेन ड्राइव्स होते हैं, सेम यहाँ से सेम उसी टाइप का होता है। जो या हम ये बोल सकते हैं जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है वो इसी से ही डेवलप की गई है। नेक्स्ट इज द कैश मेमोरी। अगर हमारे कंप्यूटर में हम कैश मेमोरी लगा देते हैं तो ये और भी ज्यादा स्पीड को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं डाटा को, कैश मेमोरी उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। उस सीपीयू को डायरेक्ट मेन मेमोरी में जाने की नीड नहीं होती है, वो कैश मेमोरी से ही डाटा को उठा लेगा। लेकिन अगर कोई डाटा ऐसा है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं तो वो कैश मेमोरी के पास पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो रिक्वेस्ट को चेक करेगा उसके पास डाटा है या नहीं है तो वो मेन मेमोरी के अंदर जाएगा। अदरवाइज अगर कैश मेमोरी के पास डेटा है तो वो वहीं से ही सीपीयू को डाटा रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा कैश मेमोरी का एडवांटेज होता है कि कैश मेमोरी से हमारा जो डाटा है वो बहुत जो हमारी डाटा की स्पीड होती है रिट्राइव करने की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाउ कैश मेमोरी के बारे में कुछ और पॉइंट्स। फास्टर होता है, एक्सपेंसिव होता है रैम से। इट इम्प्रूव द कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड इट इज लेस देन 512 KB। साइज बहुत छोटा होता है बट डाटा की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर प्रोसेसर कैन यूज इट टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। Now the second type of the memory is secondary memory. It is also known as the permanent memory. It is also known as the external memory, auxiliary memory, permanent memory. नॉन वोलाटाइल होता है, मीन्स अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी आप कर देते हो तो भी डाटा परमानेंटली उसके अंदर स्टोर रहेगा। अब वो इरेज नहीं होगा। वो इरेज कब होगा? जब आप उसको इरेज करने का या डिलीट करने का इंस्ट्रक्शन देंगे तब। नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल बाय अ कंप्यूटर और प्रोसेसर। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नाउ डायग्राम में देख लीजिए कि कुछ मेमोरी की टाइप्स दे रखे हैं, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। सबसे पहले सेकेंडरी टाइप के अंदर पंच कार्ड्स यूज करते हैं। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उनमें पंच कार्ड्स यूज किए गए थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, उसमें पंच कार्ड को हटा के कुछ और यूज किया गया। तो ये जो पंच कार्ड थे इसका डायग्राम, इसकी इमेज भी यहाँ पे है, आप उसको देखिए। और पंच कार्ड जो है वो अर्ली 1970s के जो कंप्यूटर थे, या बताया मैंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, उनमें यूज किया जाता था। नेक्स्ट है पंच टेप। पंच टेप भी आपका अर्ली कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इसका यूज नहीं होता। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि इस टाइप का हमारे पास कुछ था,
स्टोरेज के लिए। तो सेम एज द पंच कार्ड, पंच टेप वाज ओरिजिनली पेनर्ड by the textile industry for the use of the mechanized looms, could be used for the data input but also as a medium to output data. Each row on the tape represent one character. फिर मैग्नेटिक ड्रम, ये 1930s में इन्वेंट किया गया था और ये भी आपका फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ही यूज किया गया था, उसके बाद इसको यूज नहीं किया गया क्योंकि इसके साइज बहुत बड़ा है प्लस कैपेसिटी बहुत कम है। फिर अब फ्लैश मेमोरी जो हम आज भी यूज करते हैं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है, पेन ड्राइव है, इसको ईई प्रोम से ही डेवलप किया गया है। कुछ फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, एसडी कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड्स, यूएसबी ड्राइव, मेमोरी स्टिक्स और स्मार्ट मीडिया कार्ड्स। ये फ्लैश मेमोरी के हमारे कुछ टाइप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। फिर कैटेगरीज ऑफ द स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी की कुछ टाइप्स है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। जो फ्लॉपी डिस्क है वो मैग्नेटिक का ही एग्जांपल है, जिप डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, मैग्नेटिक है। जो आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव्स यूज होती हैं, हम अगर कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है कम स्पेस लगता है तो एक्स्ट्रा अलग से हार्ड ड्राइव्स भी परचेज किए जाते हैं। फिर ऑप्टिकल में सीडी रोम, डीवीडीज हो गई, आपकी सीडीज हो गई। फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस मीन्स इसमें यूएसबी किया जाएगा। फिर मैग्नेटिक स्टोरेज का कुछ एग्जांपल है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क। फोटो से देख लीजिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ द डाटा ऑन अ मैग्नेटाइज्ड मीडियम। इट यूजेस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल टू स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बताया आपको, नॉन वोलेटाइल मीन्स डाटा आपका परमानेंट स्टोर रहेगा, मैग्नेटिक टाइप में स्टोर होगा, मैग्नेटाइज्ड मीडियम में यूज होगा। द इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड यूजिंग वन और मोर रीड राइट हेड्स। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जैसे आपके ने देखे होंगे सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक डिस्क भी होती है। फ्लैट होगी, सर्कुलर होगी, मेटल मेटल की कोई ना कोई मेटल की कोटिंग होगी। दिस इज रोटेटेड बीनीथ रीड राइट हेड्स। रैंडम एक्सेस डिवाइस है, रीड राइट हेड्स होंगे। कैन बी मूव्ड टू एनी लोकेशन ऑन अ प्लेटर। कोस्ट परफॉर्मेंस लीडर फॉर द जनरल पर्पज ऑनलाइन। जैसे आपने मान लो कोई फाइल ओपन करनी है, आपने उसके फाइल के लिए क्लिक कर दिया, तो जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मूव करती है, रोटेट करती रहती है। जैसे ही वो रोटेट करती रहेगी, जो रीड राइट हेड्स होते हैं वो पर्टिकुलर फाइल को ओपन करेंगे। जो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज होता है वो 1 MB होता है, जो ये पहले के टाइम पे यूज होती थी। आज के टाइम पे तो हार्ड ड्राइव ही यूज होती हैं, जिसकी रेंज क्या रहेगी, 80 GB से लेके 500 GB तक का उसका साइज रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को और क्या हम बोलेंगे, डिस्केट बोलेंगे। Disk storage medium composed of a disk of the thin and flexible carrier lined with fabric that removes dust particle. फ्लॉपी डिस्क जो होंगे वो भी आपकी उसी टाइप में ही जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, वैसे ही काम करेगा, वैसे ही होती है, बट इसकी स्टोरेज कम होती है, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग रैपिडली रोटेटिंग डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने पीछे फोटो में दिखाया था आपको, उसी टाइप का ही होता है, वही होता है। जैसे ही आपने कोई कमांड दी डाटा एक्सेस करने के लिए, तो वो जो सीडी टाइप का होता है छोटे साइज का, वो रोटेट करेगा। जैसे ही वो रोटेट करेगा, जो रीड राइट हेड्स होते हैं उसकी हेल्प से वो फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। और जितनी ज्यादा रैम की स्पीड होगी, रैम का साइज होगा, उतनी ही ज्यादा वो फास्टली काम करेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग डिस्क विद मैग्नेटिक हेड्स अरेंज्ड ऑन अ मूविंग एक्यूटर आर्म टू रीड एंड राइट डेटा टू द सर्फेसेस। ऑप्टिकल ड्राइव्स में क्या आएंगे, सीडीज आएंगे। सीडी का साइज कितना हो, 700 MB होता है। सीडी रोम रीड ओनली के लिए काम करेगा। सीडी आर का मतलब है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आरडब्ल्यू जो रीड और राइट दोनों री राइटेबल होगा, आप उसको पुराने डाटा हटाइए, नेक्स्ट आपको उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं आरडब्ल्यू के अंदर। सेम जैसे सीडीज की अलग अलग टाइप होती है, वैसे ही हमारे डीवीडीज की भी अलग अलग सीडीज होती हैं, टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे टेक्नोलॉजी, बहुत ही फास्ट है, आज के टाइम पे इसी को यूज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क है,
स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो। जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी, अब पर लेयर इसका 25 GB का साइज होता है, डुअल लेयर पे 50 GB हो जाता है, ट्रिपल लेयर पे 100 GB हो जाता है, और क्वाड्रपल लेयर पे ये 128 GB तक हमारा काम होता है। इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है ब्लू-रे टेक्नोलॉजी। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? द नेम रेफर्स टू द ब्लू लेजर यूज टू रीड द डिस्क which allows the information to be stored at a greater density than is possible with the longer wavelength red laser used for the DVDs. And in the last, thank you very much.